Good morning, student. This is Rajesh, and today we are going to teach you the next part of equality in your civics textbook. Dear student, equality is the first lesson of your civics textbook, and if you remember, in our previous video, we already discussed about equality, especially in those videos we discuss right to vote and what happened in other kind of equality. Dear student, if you remember, when we discuss right to vote, there we saw that Kanta, Sujata, their owner, employer, and many more wealthy people are standing in a queue and they have right to one vote and one value. It means कि there we saw that peoples are equal. But what happened in the next part? I mean other kind of equality. When daughter of Kanta become ill, first Kanta finish her work to their employer house, take the advance, and then she goes to the hospital. There she stand a long hours for their turn. They think that what happened to my employer's condition if their daughter or son become ill. Is he or she also stand like this queue? Definitely not. So there we saw that in our society we face a different kind of inequality, like Kanta, because Kanta is a poor person. There she saw that the people who stand in the queue for their treatment, they are belong to poor family or they are poor. No wealthy peoples are stand there. So this is a inequality on the basis of their economical background. So right to vote have equality, but on the same hand, on the background of economical, they face a different kind of inequality. Next one is the, actually we memorize this one because shortly we memorize because we link up the next explanation which I tell them further. So remember once again. And on inequality on the basis of caste, there we read a story of Om Prakash Valmiki. They wrote autobiography on Juthan. On that book, he wrote about their childhood condition when he was childhood and read in the school. Actually, Om Prakash Valmiki is a Dalit. Dalit are lower caste born a boy. When he was in school, they have no right to sit on the benches as their colleagues also read. They have right to sit near the door and they sit separately to all the students. His teacher gave the work to sweep all the playground and school instead of reading in the class. Om Prakash Valmiki was quite young. She have no right to do anything. Fortunately, his father was running by and he saw that his son was sweeping the playground and the school. They become angry
and oppose the teachers. So what we saw there is a inequality on the basis of their caste background. यहाँ पे भी हम देखते हैं कि असमानता का व्यवहार है ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ। क्यों? क्योंकि वे कास्ट उनकी क्या है, दलित है। तो कास्ट के आधार पर यहाँ इनइक्वलिटी हो रही है। तो आपने पहला देखा राइट टू वोट इक्वलिटी है, कांता का इकोनॉमिकल बेस पे इनइक्वलिटी देख लिया, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का देख लिया जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की हम स्टोरी देखते हैं। उसमें उसे रिलीजन के बेस पे किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। उसे अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिल पाता है, जबकि वो रेंट देने को तैयार होता है, उसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चूँकि वो रिलीजन एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसलिए उसको रेंट पे अपार्टमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। जब डीलर ये बताता है, प्रॉपर्टी डीलर, कि आप अपने नेम को चेंज करो, तो वो उसको चेंज करने से इनकार कर देता है। उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। ओके, तो ये हमने इनइक्वलिटी देखा है। अब इनइक्वलिटी से क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्या फील होता है, उसी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। रिकग्नाइजिंग डिग्निटी का सेंस होता है कि अपने जिसको कहते हैं मानवीय मूल्यों को समझना, अपनी डिग्निटी, अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को जानना। सो होता क्या है कि आप अंडरस्टैंड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansari are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. Dear student, जैसा हम जानते हैं कि हम किसी कास्ट से आते हैं, किस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, कोई हमारा धर्म होता है, और जो क्लास है, किस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है, निर्भर करती है, और ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पे डिपेंड हो जाता है कि इन्हीं बातों से इनइक्वालिटी हमको फेस करने को मिलता है। जैसा आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को देखा कि किस तरीके से उन्हें कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे वे इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। अब सोचो कि क्या होता होगा, डिग्निटी कहाँ जाती होगी जब हम ऐसे लोगों को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। व्हेन ओम प्रकाश वाल्मीकि यंग, और जब वे देखते हैं कि कास्ट के कारण उन्हें स्वीपिंग का काम करना पड़ रहा है जबकि अदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या मिस्टर एंड मिसेस अंसारी देखते हैं कि वे रेंट देने को तैयार हैं, फिर भी उनके रिलीजन के कारण डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और उनको रेंट पे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनकी डिग्निटी क्या होती है, गरिमा उनकी क्या है, निश्चित रूप से बहुत ही बैडली हर्ट होती है। हमें भी है, हमें भी आज डिस्क्रिमिनेट किया जाए, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, नो डाउट कि हमारा आपकी डिग्निटी बहुत ही तेज़ी से हर्ट होगा। जब प्रॉपर्टी डीलर कहता है मिस्टर और मिसेस अंसारी को कि अपने नेम को आप चेंज करो, तो ऐसा मिसेस और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अपनी डिग्निटी को वो हर्ट करना नहीं चाहते हैं। डी स्टूडेंट, हम एक आपको एक नेक्स्ट पिक्चर्स दिखा रहे हैं। एक्चुअली दिस इज़ द आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, एंड इट टेकन फ्रॉम अ पॉपुलर मूवी, एक बहुत ही सुंदर मूवी से ली गई है। मे बी दिस इज़ द दीवार विच प्लेड बाई फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन। तो देखते हैं कि एक बूट पॉलिश करते हैं अमिताभ बच्चन, जब इस फिल्म में दिखाया जाता है कि यंग होते हैं और दो वेल्दी पीपल आते हैं और बूट पॉलिश के पैसे वो नीचे डाल देते हैं, तो ये बच्चा जो है उस पैसों को उठाने से इनकार करता है। तो इसमें फिल्म में क्या दिखाया गया था, ये दिखाया गया था कि वो बच्चा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता है, अपनी डिग्निटी को हर्ट होने से बचाता है।
उसकी डिग्निटी इस पे क्या हो रही है, हर्ट हो रही है। तो जब भी इनइक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेट होता है, तो नो डाउट पीपल जिसके लिए होता है उसकी डिग्निटी बहुत ही बैडली हर्ट करती है। ओके, अब हम आते हैं अपनी इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, समानता जो हमारे भारतीय संविधान में है। देखो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, संविधान जो पार्लियामेंट है, अभी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपकी पार्लियामेंट की, आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉ बनाते हैं। सो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, आप जानोगे ना किसे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, सभी चीज़ें हम देखेंगे इनके बारे में। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी क्या कहता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सारे पर्सन को जो है वो इक्वल कंसीडर करता है, इक्वल सभी पर्सन। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और रिकॉग्नाइज एज इक्वल, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, ट्राइब्स हो, उसका एजुकेशनल इलिटरेट हो या लिटरेट हो, उसका पुअर हो या रिच हो, इन सभी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इक्वल कंसीडर करता है। सो इट डज नॉट, एटलीस्ट इन डेमोक्रेसी इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। देखो हमारी डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल सिद्धांति है वो है कि एवरी पर्सन आर इक्वल। अब इक्वल तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से लागू होता है? क्या सभी कंसीडर किए जाते हैं इक्वल? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत ऐसे तरीके हैं, बहुत ऐसी कंडीशंस हैं, चाहे वो कास्ट पे हो, रिलीजन पे हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे हो, इनमें कहीं ना कहीं लोग जो है इनइक्वालिटी को फेस करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो ये पार्लियामेंट का एक आपको फिल्म पिक्चर्स दिखाई जा रही है, जिसमें क्या है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और हमारे लिए वो लॉ बनाते हैं। देखो बिफोर अर्लियर जो है इस तरह का कोई लॉ तो नहीं था डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लेकिन जब हमारी कंट्री रिपब्लिक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ इम्पोज होता है, लागू होता है, उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन को वैनिश करने के लिए, हटाने के लिए या इक्वलिटी लाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो तरीके से इसको श्योरिटी देता है। नंबर 1 बाय लॉ, कानून के द्वारा, एंड बाय मेकिंग द गवर्नमेंट स्कीम, या गवर्नमेंट स्कीम बना के। देखो कहता है कि द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबको इक्वल कंसीडर करता है, और इसके लिए वो दो चीज़ें बनाता है। पहला कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग इक्वल हैं। इट मीन्स कि चाहे हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट हो या कांता हो या आप हो या हम हो या कोई भी पर्सन हो, उन सभी के पास इक्वल रेमेडीज़ हैं। आप कह सकते हो कि वे कानून के समक्ष, लॉ के समक्ष क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल उनके पास राइट है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हमें हर जगह देखने को नहीं मिलता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ आप देखोगे कि चाहे कांता हो गई या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया, अंसारी हो गए, इनको इनइक्वलिटी का फेस नहीं करना होता। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इक्वलिटी को श्योरिटी देता है, वो कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसका रिलीजन कुछ भी हो, रेस कुछ हो, कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, वेदर दे आर मेल और फीमेल। थर्ड, तीसरा क्या कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक। तीसरा कह रहा है कि कोई भी पर्सन, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं,
वे एक्सेस कर सकते हैं, उनका वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो। ऑल पर्सन कैन पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, उनके पास कुएँ हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं। और फोर्थ जो है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबलाइज्ड, और अनटचेबिलिटी को अब कानून के लिए एक कानून बना दिया गया, उन्मूलन किया गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकता है। अब हमने आपको बताया कि जो इक्वालिटी को गारंटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है वो दो तरीके से, थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, कि इक्वालिटी को श्योरिटी या फिर कह सकते हो कि जो गारंटेड करती है गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो दो तरीके से, बाय लॉ एंड सेकेंडरी बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी, जो बहुत दिनों से बहुत उनको अवसर नहीं मिल पाया था आगे आने का, उनके लिए वो गवर्नमेंट बनाती है। ओके, अब देखो सेवरल स्कीम गवर्नमेंट जो है इन कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेटअप करती है। उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि गवर्नमेंट ने लिया था, मिड डे मील स्कीम। एक्चुअली ये बच्चों के लिए किया गया था, मध्याह्न भोजन। आज देख तो आज भी चलता है स्कूलों में कि बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले क्या होता था, ये एक्चुअली 2001 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूरे कंट्री में लागू किया गया, लेकिन सबसे पहले इसको प्रैक्टिस किया गया था तमिलनाडु में। गवर्नमेंट ने देखा, या हमारा कोर्ट कह सकते हो, जुडिशरी ने देखा कि इसका बहुत ही वाइड इम्पैक्ट है और ऐसे पीपल, ऐसे कम्युनिटी के लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, बच्चे पोषण पा रहे हैं, न्यूट्रिश पा रहे हैं, उनकी मदर को अपने काम छोड़ के आना नहीं पड़ता और बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पूरे देश में 2001 से लागू किया जाता है। ये स्कीम क्या है, मिड डे मील स्कीम। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है कि बच्चे, स्कूल आने वाले बच्चों को भोजन देती है। एक्चुअली पहले होता ये था कि बच्चे, टीचर्स बताते हैं इन स्कूल्स के कि जब ये बच्चे स्कूल आते थे और भोजन करने के लिए घर जाते थे तो ये वापस नहीं आते थे। इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। अब बच्चे पूरे टाइम पीरियड तक वो स्कूल में रहते हैं और बच्चों की संख्या भी बढ़ती है। तो एक स्कीम के तहत इन बच्चों को ये मिड डे मील दिया जाता है। तो इक्वालिटी ये रखी गई है आपको जो बताने के लिए कि स्कीम के थ्रू यह इक्वलिटी सही बच्चों को दिया गया है। साथ ही साथ इसमें सभी बैठ के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, इक्वली एक साथ बैठ करके और कॉमन किचन, या कह सकते हो कि एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। और कभी कभी तो खाना बनाने वाले जो कुक हैं वे दलित भी होते हैं। तो इस तरीके से कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरीके से एबलाइज हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है स्टेप लेती है। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नो डाउट कि आपको पता होगा कि फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक्चुअली भीमराव अंबेडकर स्वयं एक दलित होते हैं और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और एक मेजर इनका स्टेप होता है कि जो आज जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो इनका एक मेजर रोल है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन्स को दूर करने में इनकी महती भूमिका है। सो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अदर डेमोक्रेसीज में क्या इनइक्वालिटी है, जिसमें हम रोजा पार्क और यूएसए की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे। आई होप you understand it well. If you have any problem, please ask your query only in your respective group. Thank you. Have a nice day.